Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So, the lesson that we are going to teach is metal and non-metal. In this, the topic is corrosion. What do you mean by the corrosion? The term corrosion, we have read it earlier in the chapter 1. Yes. Say, what do you mean by corrosion? The process by which metal are eaten up gradually by the action of air, moisture, or any acid. Okay. The process Of by which metals are the metals are degraded in presence of acid, moisture, and air. Have you got this? Sir, Have ये you topic got the हटा दिया. definition of the corrosion? Now, here we will see the three examples. We will see the three examples where the corrosion or the rusting is happening. The first one, we will see the example of anklets. Do you know what is anklets? Girls especially. What is anklets? जानते हैं Payal. क्या Sir, जानते हैं? payal. पायल, करेक्ट. तो एंकलेट जो होता है, that is पायल. Your mother is wearing the anklets, and after 4 or 5 months you can see there is a blackish covering on that. उसके ऊपर काले रंग का कवर चढ़ जाता है. How this happen? क्यों हो जाता है ऐसा? क्यों हो जाता है? Due to The corrosion. anklets are made up of the silver. करता है उसके बाद वो. Anklets are made up of the silver, and when it react with the, you can say sulfur, they form, you can say silver sulfide. What they form? Silver sulfide. It is shiny in color. The silver is shiny in color, but silver sulfide is blackish in color. Have you got the reason? Yeah, Why the sir. pile convert shiny to blackish in color? आपका सिल्वर क्यों शाइनी से ब्लैकिश हो जाता है? ये बात आपको समझ में आई? Let us take one more example of another metal, that is your copper. Copper का एक example लेते हैं. You have seen your mother is using copper utensil for doing the worship job. यानी कि पूजा वगैरह का काम करने के लिए कॉपर के यूटेंसिल का यूज करती हैं. एंड यू हैव सीन दैट
a green coating is occurring on it, उसके ऊपर कैसा कोटिंग लग जाता है? ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। तो एक ग्रीन कोटिंग का कवरिंग क्यों आता है बाबू? कोई बताएगा क्या बन जाता है तो ग्रीन कोटिंग दिखता है? कॉपर के ऊपर क्या लगता है तो ग्रीन कोटिंग बन जाता है? सर ये सल्फर। हाँ, सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहा है, सिल्वर सल्फाइड बना रहा है जो कि ब्लैक कलर का होता है। सर सल्फर आता कहाँ से? सल्फर एटमॉस्फेयर में नहीं है जी। सल्फर आपका एटमॉस्फेयर में नहीं है। एयर मैंने कहा है ना, एयर के साथ रिएक्शन करेगा। एयर मतलब ऐसा थोड़ा ना कि खाली ऑक्सीजन, इट मे बी एनीथिंग। हैव यू गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, अगला जरा देख लेते हैं कॉपर का, जो मैं अभी अभी कॉपर यूटेंसिल की बात कर रहा था। कॉपर यूटेंसिल आपकी मदर जो यूज करती है, ये रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और प्लस आपका H2O यानी कि वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, मॉइस्चर के रूप में ये पाया जाता है, गैस के रूप में। जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है CuCO3 और यहाँ पे XH2, that is known as copper carbonate, hydrated copper carbonated. Have you got it? The color of this one is what? It is shiny yellowish color. ये कैसा होता है कॉपर का कलर? शाइनी येलो, ये ना होता है। और इसका कलर कैसा होता है कॉपर कार्बोनेट का? ग्रीनिश। वो X2 बात समझ में आई है? तो सर जब XH2 क्या है? हाँ बेटा, सर XH2 लिखा है ना। H2O, the number of H2O may be indefinite, you can say, फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ओके सर। ओके, नाउ सी, यहाँ पे कॉपर आपका है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड इट फॉर्म्स कॉपर कार्बोनेट हुज कलर इज ग्रीन। Greenish. These two. Now the last one we will see about the iron. We know that when we buy the iron article, the freshly bought new iron article are, you can say, shiny in nature, चमकते हुए होते हैं जब नया नया लोहे का सामान लेते हैं तो। But what happens afterwards? कुछ समय बाद क्या हो जाता है? Especially in rainy season, they turn into, you can say, which color? Brownish color. Yes, They sir. turn into brownish color due to the formation of the, you can say, iron oxide, which is known as the rust, जिसको क्या कहते हैं? Rust कहते हैं। And this process is also known as rusting. It is specially given for the iron only. See, iron 2Fe plus O2 plus H2O in the gaseous state, that means moisture, it will give you Fe2 O3 plus, or sorry, XH2O. This is known as iron, which is shiny in color. Shiny in color. This is known as, you can say, iron oxide. Iron oxide, whose color is brownish. कलर क्या होता है? ब्राउन। कलर आपका ब्राउन जैसा होता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, द होल प्रोसेस इज नोन एज rusting. This is known as the rusting. And as you have learnt in the lesson 1, that due to the rusting, there is a great loss of the, you can say, iron
in our economy due to the loss of the iron. Every year, you can say an enormous amount of the iron are destroyed due to this oxygen, and you can say the moisture presence in our atmosphere. But there are certain methods how we can prevent this rusting, or we can say the corrosion of the metal. Have you understand up to this? Is there any doubt? No, sir. कोई डाउट है बेटा? No, sir. नहीं. Okay. May I rub it? Yes, sir. No, sir. No, sir. Okay, right. So these are the three metals where you can say the corrosion are going on. The first one, you have seen the example of silver, which forms silver sulfide. Second one is copper, which forms the copper carbonate. And the last one is iron, that forms the, you can say, iron oxide. That the process is known as the rusting. Now, here the thing is that either single air is responsible for the rusting. We will discuss about rusting only here. Either single air is important for the rusting, or water is important for the rusting, or both the air and the water is important for rusting. We are discussing only rusting here, see, that happens in the iron, rusting. If you will take the 3 test tube, see in your NCERT book, you will see this. This another test tube, and then one more test tube. That is your third test tube. In the first test tube, take the water and put a nail inside it. What you have to do? Put a nail inside it. Name it as A. Test tube A. बेटा sound कैसा आ रहा है? Mute your mobile here. In the second test tube, you can take the distilled water which is boiled. That is your boiled water. What is this? This is your boiled water. Boiled water. And this one is your cold water simply. And among this boiled water, just put a layer of the oil. किस चीज का लेयर डाल देना है? यानी कि तेल डाल देना है इसके ऊपर, मस्टर्ड ऑयल. तो क्या होता है, ऊपर से ये लेयर लग जाएगा, a layer of the mustard oil, and then close this one with the, you can say, cork. Cork से क्या कर दें? इसको बंद कर दें. Have you got it? Next one, तीसरे वाले में क्या करें? Take anhydrous calcium chloride. Anhydrous calcium chloride, CaCl2. सर anhydrous क्या होता है? Anhydrous मतलब which have the capacity to absorb the moisture. जिसके पास moisture absorb करने की capacity हो, उसको anhydrous, anhydrating agent कहते हैं. तो anhydrous calcium chloride इसलिए लिखा गया है क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड भी क्या करता है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है. अब इसके अंदर भी एक नेल आप रख दें, ऐसे जैसे आपने बाकी सब में रखा था, और इसके बाद इसको भी कवर कर दे आप. किस चीज से?
कॉर्क से। हैव यू गॉट इट? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नो वाटर, यहाँ पर वाटर नहीं है ना, नो वाटर, No, sir. नो वाटर, और जो वाटर थोड़ा बहुत मॉइस्चर के रूप में होगा उसको आपका इसने एब्जॉर्ब कर लिया, किसने? कैल्शियम क्लोराइड ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वाटर नहीं है बट एयर इज प्रेजेंट, एयर प्रेजेंट है, ठीक, एयर प्रेजेंट। यहाँ पर क्या देखेंगे, ये बॉइल्ड वाटर है, तो बॉइल्ड वाटर के अंदर आपका क्या नहीं होगा? एयर नहीं होगा, नो एयर। अगर बॉइल्ड वाटर है तो एयर नहीं होगा, बट वाटर इज देयर, वाटर तो है ना, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Air. And in this situation, both the air is there, यहाँ एयर भी है और इसके अलावा आपका वाटर Water भी है। अब ये बताइए, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, इसको हम कह लें टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब सी। अब ये बताइए टेस्ट ट्यूब ए बी सी, इन तीनों में रस्टिंग किसमें होगा और किसमें नहीं होगा? A में होगा। अच्छा, रस्टिंग टेस्ट ट्यूब ए में होगा। व्हाई द रस्टिंग विल ऑकर इन टेस्ट ट्यूब ए? Air Because air and water both present. Yes, because air and water vapor or water, both of them are present, so the rusting will occur. It's okay? You have given the right answer. But the rusting will not occur in test tube B. Can you explain why the rusting will not occur in test tube B? Yes, sir. Because the air is absent in this test tube. Air is absent. Air, presence of water. only water is present, but the air is absent, so the rusting will not occur in, you can say, test tube B. Is it clear? Yes, sir. Anybody have doubt? Now see the situation of test tube Excuse me, C. sir. Say. सर बुक में दिया है कि टेस्ट ट्यूब बी में भी एयर प्रेजेंट है। Where? Sir, layer of oil के ऊपर। Yes, sir. But where is your nail? But where is your nail? Nail कहाँ पे है? Inside the bottle. Inside the water. Now this air will not, this nail इसके कांटेक्ट में नहीं ना आएगा, because there is the layer of oil. ये किस चीज का लेयर है? Oil. Will prevent it. Have you understand? Yes, sir. The oil will prevent the air to enter into the, you can say, water, so that the rusting process will not occur. Have you got the answer? Yes, sir. Why the rusting will not happen in test tube B? Now let us Yes, see about sir. test tube C. In test tube C, you can say air is present, but the water is not present. The water vapor that were present, they were absorbed by the calcium chloride. So rusting will also not occur. Not occur. Test tube C. So for the rusting, there is necessary condition arises that the presence of the water and the air, both of the things, if they will be present, then only rusting will occur. If they will be absent, anyone will be absent, then the rusting will not occur. Now, Occur. the question arises, how we can prevent rusting? तो इसमें सीधा सा बात है बेटा, अगर रस्टिंग को हमें रोकना हो तो या तो हम वाटर की एंट्री बंद कर दें, या तो एयर की या एंट्री फिर बंद कर दें, या दोनों की एंट्री बंद कर दें। पेंटिंग भी हो सकते हैं ना। हाँ, बहुत सारे मैं प्रोसेस नहीं पेंट बता भी रहा कर हूँ, मैं अभी आपको प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू कि एक आसान तरीका यही ना होगा कि या तो एयर की एंट्री बंद कर दें या तो फिर वाटर की एंट्री बंद कर दें, ताकि वो कांटेक्ट में ना आए मेटल के, आयरन के, तो रस्टिंग नहीं होगा। हैव यू गॉट इट? अब अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस है, सबकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. इज देयर एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट हो तो बोले बेटा। सर टेस्ट ट्यूब सी में, हाँ, टेस्ट ट्यूब सी में बेटा बोले। सर नीचे जो बताया एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बोले हैं बेटा।
सर तो उसको जरा बता दीजिए क्या होता है मतलब। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, आपने कैमरा वगैरह देखा है? कैमरा वगैरह जो पुराने आते थे उसके अंदर जहाँ पे रील लगाया जाता था उसके अंदर हम लोग छोटा सा एक पैकेट में आता था, उस पैकेट को उसके अंदर भर करके रख दिया जाता था ताकि उसके अंदर वाटर या मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना हो सके, क्योंकि उससे कैमरा खराब हो सकता था। अभी भी कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसे आते हैं जिसके अंदर गोल गोल दाने दाने के भरे हुए आपके पैकेट्स आते हैं, उसको अंदर डाल दिया जाता है तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जा पाता, या मॉइस्चर जो जाता है उसको सोख लेता है। ये सर आता है। हाँ जी, आते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? Yes. ओके, मे आई रब इट? मे आई रब इट? यस सर। Yes, sir. नहीं, तुम लोग सांस बड़ा तेज तेज ले रहे हो, कोरोना संक्रमित नहीं ना हो रहे हो? सर ऐसा ही कहेंगे। तुम लोग सांस इतना तेज ले रहे हो, या तो मेरे को डराने के लिए ले रहे हो, या तो फिर दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। सर हवा चल रही है, हवा। अच्छा, बारिश हवा चल- हाँ, मौसम सर तो बारिश हो रही है। बहुत खराब है। अभी बारिश हो रही है? ये सर बारिश इधर हो रही है। यस सर हो रही है। कहाँ हो रही है बारिश? नाम कहाँ हो रही है बारिश? सर मेरे पास मधुबनी में। ओके, वीडियो चालू कर दे क्या, देख लीजिए। नहीं रहने दो, बारिश तो रात भर देख करके परेशान हो गए। स्कूल पे नहीं हो रही है क्या? नहीं, रात भर हुई है, इस समय नहीं हो रही है। रात को सर। प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। कोरिजन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? देयर आर वेरियस मेथड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कोरिजन। नंबर 1, पेंटिंग। नंबर 2, ऑयलिंग। नंबर 3, ग्रीस। Number 4, galvanization. Galvanization ये क्या होता है सर? अभी बता देंगे बेटा, सारा एक्सप्लेन हम कर देंगे आपको। प्रोसेस सारे एक्सप्लेन हम करेंगे आपको, पहले लिख तो लेना। गैल्वेनाइजेशन। एंड नंबर 5, क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग। ये तो टॉपिक रिमूव हो गया। 1 is more anodizing. Anodizing. And the last one, by making alloys. By making alloys. सर दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे वाला, चलिए जब यस सर। ये ऊपर वाला एक्सप्लेन कर देंगे तो उसको ऊपर हम लिख देंगे, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले पेंटिंग की बात कर देते हैं। तो ये कॉमन प्रोसेस आप जानते हैं कि कोई भी आयरन का आर्टिकल हो या किसी मेटल का हो, उसके ऊपर अगर पेंट का कोट कर देते हैं तो उसके वजह से वाटर वेपर का कह सकते हैं या एयर का एंट्री नहीं हो पाता, जिसके वजह से कोरिजन नहीं होता है। आमतौर पे वी हैव सीन इट इन द, यू कैन से, केस ऑफ द आयरन। आयरन जब भी हम लगाते हैं, आयरन का कोई भी आर्टिकल, तो उसके ऊपर क्या कर लेते हैं? पेंटिंग कर देते हैं। जैसे विंडो हुआ या बाकी चीज, आपका डोर हुआ, उसके ऊपर क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। कोई मशीनरी पार्ट्स हुआ, उसको पेंटिंग कर देते हैं ताकि उसका कोरिजन ना हो पाए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक। अब हाँ बोले सर, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बेटा उसको हम ऊपर लिख देंगे जो नीचे नहीं दिख रहा है। अभी एक एक पहले समझते जाएं, अगर डाउट हो तो वो एक पूछें।
पेंटिंग समझ में आया? Yes, sir. नाउ सी द सेकंड वन, ऑयलिंग। कुछ आयरन के आर्टिकल ऐसे होते हैं डेट आर इन डेली यूज, जो कि डेली यूज में इस्तेमाल होते हैं और दे आर यूज फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। खास तौर से उनका यूज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में होता है, जैसे आपका फावड़ा हो गया, शॉवल हो गया, कुदाली हो गया, ये सारे चीज, या फिर टांगे हो गए, या फिर आपका हसिया जिसे दाव कहते हैं, इन सारे चीजों का। अब इसका पेंटिंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर पेंटिंग करेंगे तो इनका जो वर्क होता है वो वर्क इनसे नहीं हो पाएगा। तो इस सारे चीजों को हम क्या करते हैं, वी डू द सेकंड थिंग, दैट इज योर ऑयलिंग। दैट मीन्स यूजिंग द ऑयल इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पेंट। हैव यू गॉट इट? ऐसे चीजों ऑयल, यस सर ऑयलिंग वाला बता एक बार। हाँ से, ड्यूरिंग द रेनी सीजन we ऑयलिंग वाला बता दीजिए एक बार, ऑयलिंग वाला। in the oiling I am telling you, during the rainy season on some article which we use for the agriculture purposes, we oil them। उसके ऊपर क्या कर देते हैं, ऑयल का एक लेयर लगा देते हैं ताकि वो बरसात में खराब ना हो। जैसे आपके कोई भी ऑयल, केरोसिन ऑयल में भी, मस्टर्ड ऑयल में भी, इट में भी एनी टाइप ऑफ द ऑयल, so that the air may not directly come into the contact with the, you can say, metal के direct contact में air नहीं है। Have you got it? हाँ? यस सर। सर टेम्पररी है ये कि हाँ, permanent? temporary है। In every rainy season you have to do it. It is temporary. Yes, sir. Have you got it? Yes, sir. Now the third one is greasing. Greasing. Grease जानते हैं आप लोग? Greasing Yes, is sir, a grease जानते हैं, process sir. that is utilized in the machinery parts. मशीन के अंदर साइकिल में लगाते हैं सर। व्हीकल्स वगैरह या आपके बाइसाइकिल हो गए, उन सब के अंदर देखा होगा कि फॉर द आयरन आर्टिकल ग्रीस आर यूज्ड, एंड दैट ग्रीस यू कैन से प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरिजन ऑफ द मेटल। मेटल को कोरिजन से वो क्या करता है, बचाता है। एंड मोर ओवर इट ऑल्सो इंक्रीजेस द इफिशियंसी। इफिशियंसी भी क्या करता है, उसकी बढ़ा देता है। जैसे आसानी से साइकिल चलती है, मोटर पार्ट्स आसानी से काम करते हैं, पंखा आसानी से घूमता है। हैव यू गॉट इट? तो दो काम होता है इसका। मेन काम यहाँ कोरिजन से मतलब है, तो वो कोरिजन से प्रिवेंट करता है। ठीक। अब रहा बात अगला, गैल्वेनाइजेशन, स्पेशली ऑन द आयरन। आयरन यू कैन से वी पुट ए लेयर ऑफ द जिंक। इसका जिंक का कोटिंग कर देते हैं हम, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। और जिंक का जब कोटिंग कर देते हैं, देन व्हाट हैपन, देन ड्यू टू द थिक कोटिंग ऑफ द जिंक द corrosion does not happen. If somehow the, you can say, layer of the zinc is also broken down, अगर जिंक का लेयर टूट भी जाता है, then also you can say the corrosion will not occur. Do you know why? You have seen the pipes from where the water is supplied, जिससे पानी सप्लाई किया जाता है। हाँ, वो वाले जो पाइप देखे होंगे वो क्या होते हैं, आपके गैल्वेनाइज्ड होते हैं, यानी कि ऊपर जिंक की कोटिंग पाई जाती है। और कई बार जिंक की कोटिंग टूट जाती है, तब भी पता चला कि देयर इज नो, यू कैन से, एनी टाइप ऑफ द, यू कैन से व्हाई। सर उस पे तो मतलब प्लास्टिक होता है, तो उस पे क्या करना है? जस्ट सी इट, दिस इज द आयरन एंड दिस इज द कोटिंग ऑफ द जिंक। दिस इज द स्टील में भी तो जिंक की कोटिंग होती है ना? हाँ, स्टील के ऊपर भी होता है। स्टील मीन्स आयरन, आयरन स्टील दोनों एक ही है। कार्बन उसके अंदर पड़ा होता है आयरन के अंदर, तो उसी को स्टील कह दिया जाता है। अभी आगे हम बताएंगे आपको। जस्ट ये देखिए, आयरन आर्टिकल है, आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक का कोट लगा दिया गया है। अब मान करके चलिए यहाँ से जिंक का कोटिंग निकल जाता है। अब जिंक का कोटिंग इतने दूर से तो निकल गया, तो यहाँ रस्टिंग होना चाहिए, रस्टिंग होना चाहिए ना। बट द रस्टिंग डज नॉट हैपन हियर, यहाँ रस्टिंग नहीं होता है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज द ऑक्सीजन विच कम इन कांटेक्ट विद दिस react with these, you can say, zinc atoms that are present in the nearby or the in the side by, जो साइड में आपके जिंक प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके और यहाँ पर रस्टिंग उसको नहीं होने देते हैं। Have you understand it? Yes, sir.
सर ये आयरन पाइप पे ही होगा सर, और किसी चीज पे भी हो सकता है क्या चीज? सर मुझे नहीं समझ में आया। सर, बस ये आयरन के पाइप पे ही होगा। आयरन और स्टील के लिए होता है ये, मोस्टली आयरन के पाइप्स के लिए होता है। गौरव सर, चौबे। ओके, सर अगर उसपे से पूरी जिंक की कोटिंग हट जाएगी तब तो उस पर रस्ट होगा ना। हाँ पूरी कोटिंग हट जाए तब तो बात अलग है, मगर थोड़ा बहुत अगर हटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिंक आपका ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर टू द आयरन। और जो भी ऑक्सीजन आएगा वो पहले जिंक से रिएक्शन कर जाएगा, आयरन से वो रिएक्शन नहीं करेगा बोल करके उतने दूर का एरिया आपका सेफ रहेगा। यानी कि थोड़ा भी अगर लेयर बचा रहेगा तो आपका कोरिजन नहीं हो पाएगा। हैव यू गॉट इट? यस सर। नाउ सी द नेक्स्ट वन इज क्रोम पूरे प्लेट। पाइप में थोड़ा बचा रहेगा तब पर भी। हाँ थोड़ा बचा, पूरे पाइप थोड़ा सा बचा रहेगा तब पर भी। पूरे पाइप पर भी अगर जिंक का कोटिंग थोड़ा भी बचा हुआ है तो वहां पे कोरिजन नहीं होगा, मगर अगर नहीं बचा हुआ है तभी जाकर के हो सकता है। वैसे चांसेस बड़े कम होते हैं, उससे पहले आपका सब चीज खत्म हो जाता है। आमतौर पे देखा होगा वो पाइप जब लगती है तो खराब नहीं होती है, बहुत लंबा समय लग जाता है। अब इसके बाद अगला क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग में देखेंगे तो दो मेटल आपके क्रोमियम और इसके अलावा निकिल, इन दोनों का यूज किया जाता है आयरन के ऊपर। और क्रोमियम और निकिल का जब यूज किया जाता है तो इसके वजह से यानी कि आयरन के ऊपर एक लेयर लगा दिया जाता है, किस चीज का? क्रोमियम का या फिर निकिल का, जिसके वजह से उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? शाइनी हो जाती है, यानी कि वो एकदम चमकना शुरू कर देते हैं। हाँ, और इसके अलावा स्टेनलेस स्टील के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, रस्ट प्रूफ हो जाते हैं या कोरिजन प्रूफ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कोरिजन प्रूफ। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आपके जो बाइक है, जो आपका बाइक है उसका हैंडल, इसके अलावा ये और बाइसाइकिल हैंडल, आपके बाइसाइकिल के हैंडल, या फिर आप कह सकते हैं आपके मोटरसाइकिल के जो नीचे वाले ये होते हैं, क्या कहते हैं उसको, पहिए के पास रिम, शॉकर सर, शॉकर। हाँ शॉकर हुआ, रिम हुआ, ये सारे आपके एक्चुअली ये क्रोम प्लेटिंग के जरिए ही बनाए जाते हैं। इस वजह से दे हैव द शाइनी प्रॉपर्टी एंड दे डू नॉट रस्ट आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, चाहे वाटर हो मगर तब भी उनके ऊपर रस्टिंग नहीं लगती है, बिकॉज दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्टेनलेस स्टील। हैव यू गॉट इट? कुछ समय बाद तो लग जाती है, कुछ समय। हाँ बाबू, रिंग में तो कुछ समय के बाद लग जाती है ना, कुछ समय बाद लग जाती है पानी की वजह से। अब उसके ऊपर हमने क्या किया है? द मेटल इज चीपर वन, डेट इज आयरन। आयरन का मेटल है, उसके ऊपर हमने क्रोमियम या निकिल का लेयर लगाया है। भाई एक टाइम तो होगा ना कि कितने साल के अंदर ये क्रोमियम या निकिल का लेयर हट जाएगा। अब आपकी गाड़ी 20 साल पुरानी हो चुकी तो 20 साल के अंदर क्रोमियम और निकिल का लेयर तो हट ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए किया गया है। तो उसके बाद तो जंग लगना स्वाभाविक है। सर जब तक रहेगा तब तक तो नहीं लगेगा, तब तक नहीं लगेगा, सवाल ही नहीं पैदा सर दोनों में से किसी एक चीज की कोटिंग करते हैं? किसी एक चीज की, चाहे हम क्रोमियम की कर लें चाहे निकिल की कर लें, मगर एक्चुअली आयरन का पहिया तो आयरन का ही होगा, हैंडल आयरन का ही होगा क्योंकि हार्डेस्ट होता है, और दूसरी बात है इट इज चीपर वन। मगर क्रोमियम और निकिल काफी महंगे होते हैं, सो वी यूज दिस फॉर ओनली कोटिंग। इसका ऊपर से केवल एक लेयर चढ़ाने के लिए यूज करते हैं। वी डज नॉट मेक द होल, यू कैन से पहिया और यू कैन से हैंडल ऑफ द क्रोमियम और द निकिल, क्योंकि क्रोमियम और निकिल का पहिया हैंडल बनाएंगे इट विल बी टू मच कॉस्टली। दिस यस सर। यस सर। सर जो क्रोमियम है बस आयरन पे ही कोटिंग होता है, दूसरे मेटल पे भी हो जाता है? आयरन के ऊपर होता है मेनली, तो दूसरे मेटल पे नहीं होता है? दूसरे मेटल पे नहीं, दूसरे मेटल पे दूसरी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। जैसे एल्युमिनियम हो गया तो उसमें एनोडाइजिंग यूज किया जाता है। एनोडाइजिंग क्या होता है? अब एनोडाइजिंग बताएंगे ना, नीचे ना आएंगी तब ना बताएंगे। हाँ, इसके बाद कर सकते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्रोमियम क्या? क्रोमियम और निकिल की जगह जिंक यूज कर सकते हैं। तब तो गैल्वेनाइजेशन हो गया ना, नाम बदल गया उसका। तब उसका नाम क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा।
गैल्वेनाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है? गैल्वेनाइजेशन ये भी आयरन आर्टिकल के ऊपर होता है मेनली, जहां से वाटर को हमें सप्लाई करना हो, पानी वगैरह सप्लाई करना हो, उस जगह पे हम गैल्वेनाइजेशन यूज करते हैं। यस सर। Yes, sir. एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग जो कह रहते हैं ये, हालांकि एक बार और हम जब पीछे देखेंगे पीले वाले बॉक्स में भी दे रखा है तो उसमें हम समझेंगे। एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर, ऑक्साइड टू डिपोजिट द लेयर ऑफ द ऑक्साइड, टू डिपोजिट द लेयर ऑफ द ऑक्साइड ऑन एल्युमिनियम, ऑन एल्युमिनियम आर्टिकल, एल्युमिनियम आर्टिकल is known as anodizing। बेटा एनोडाइजिंग आपका किया कैसे जाता है? इट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए एनोडाइजिंग किया जाता है, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि क्या किया जाता है, इसके अंदर ऑक्साइड का लेयर, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक मोटा लेयर इसके ऊपर बना दिया जाता है, जिससे कि एल्युमिनियम मेटल का फर्दर कोरिजन ना हो पाए, इस चीज को रोकने के लिए। हेलो, आर यू गेटिंग द साउंड? यस सर। फर्दर कह सकते ये ना हो, तो ऑक्साइड लेयर का डिपोजिशन जो होता है ऑन एल्युमिनियम आर्टिकल इज नोन एज एनोडाइजिंग। और इसको करने के लिए कैसे किया जाता है? द एल्युमिनियम आर्टिकल आर टेकन इज द एनोड, इसको एनोड के रूप में लिया जाता है। और उसके बाद कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास किया जाता है तो ऑक्सीजन निकल करके सारा किसके ऊपर, एनोड के ऊपर जाकर के डिपोजिट हो जाएगा। और वो रिएक्शन किससे करेगा? अरे भाई एल्युमिनियम क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना, एल्युमिनियम क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो आपका ऑक्सीजन जाकर के कहाँ डिपोजिट होगा? एनोड के ऊपर ना। और जब ऑक्सीजन जाकर के डिपोजिट होगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड वो बनाएगा। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो मोटा लेयर बन जाएगा उस वेसल का, जैसे प्रेशर कुकर हुआ या बाकी जो भी कुकिंग वेसल्स हैं आपके, तो वो कोरिजन फ्री हो जाएगा। उसके बाद उसको डाई कर देते हैं या रंग कर देते हैं, एंड इट बिकेम, यू कैन से, कोरिजन फ्री। ये दोनों टॉपिक जो एनोडाइजिंग है, और इसके अलावा बाई मेकिंग एलॉयज, ये दोनों कल ये डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल समय आपका खत्म हो चुका है, फिर आधे पे रह जाएंगे। हाँ सिलेबस रिड्यूस हो गया है। हाँ सर ग्रीसिंग बता दीजिए। सर एमलगम क्या होता है? एमलगम, एमलगम अभी वो बताएंगे ना, एलॉय जब बताएंगे तो एमलगम बताएंगे। ऐसा जिसके एलॉय जिसके अंदर एक कंपोनेंट यानी कि एक मेटल मरकरी हो, उसको एमलगम कहते हैं। समझ में आया? सर लास्ट वाला बताइए। लास्ट वाला ग्रीसिंग। हाँ? कौन सा? एनोडाइजिंग और एलोइंग वाला कल हम बताएंगे। कल बताइएगा। एनोडाइजिंग का हाँ, ये दोनों हम कल बताएंगे। और कल एलॉय का फिर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, 3-4 एलॉय के एग्जांपल है। ओके देन, हैव ए गुड डे। बाय सर। बाय बाय सर।